Hello, everyone. On behalf of 30 states, I welcome environmentalist Professor S.S. Gyani and all our participants to this webinar on ecosystem restoration, how to heal our planet post-COVID-19. Mr. Rajendra Singh, who's popularly known as Waterman of India, will join us in about 10 minutes. He's stuck somewhere. Just to give a brief introduction of what we are going to discuss today, it's about our environment and ecosystem restoration post COVID-19. As we all know, for hundreds of years, we human beings have been destroying forests to get access to more and more land. And this has led to soil erosion, floods, reduction of oxygen cover, flora, as well as fauna. More importantly, it has brought wild animals and the pathogens they carry closer to us. Coronavirus is an example of this. Across the world, there is a movement now towards rewilding, which simply means restoring an area to its natural, uncultivated state. And that's what can bring back species of wild animals that have been driven out. Our esteemed panelists today will discuss how we can restore our ecosystem. I now request my colleague and 30 States co-founder, Urvashi Dev Raval, to introduce our panelists and take forward the discussion. Thanks, Rashmi. Good afternoon, everyone, and good afternoon to Professor Gyani, who's joined us today, and Dr. Singh will be joining us. So, as Rashmi gave a brief introduction, today's discussion is centered around the issue of ecosystem restoration, which has become even more pertinent in the light of the COVID pandemic. Over the years, though, a lot has been said, but we have disregarded warnings of climate change from nature, from scientists, and from the media. We have overexploited our natural resources and destroyed the ecosystem, leading to shrinking of natural habitat for animals. This creates conditions for pathogens like coronavirus to spread. The pandemic should jolt us all out of our complacency and motivate us to recreate and restore our ecosystem. This, by the way, is also the theme for the World Environment Day 2021, which is observed every year on June 5. So now let's head into our discussion. But first, I'll just briefly introduce Dr. Professor Gyani. Dr. Gyani is an associate professor of sociology at the Government Dungar College in Bikaner. Apart from teaching, he has been working for afforestation and has applied environmental education through his concept of familial forestry. Till date, he has planted around 2.5 million saplings by engaging families, schools, and communities in the vast desert in Western Rajasthan. He has been felicitated by the President of India for his exemplary work that has turned the desert areas green. I'll also give a brief overview of Rajendra Singh Ji's work. I think most of us know that he has founded the Tarun Bharat Sangh, and over the last 44 years, he has provided solutions to issues of climate change and adaptation through efforts of local communities, empowering them through water conservation and replenishing of groundwater banks. Dr. Singh is a strong advocate of traditional water conservation knowledge, restoration of groundwater reserves, and community management of natural resources. He believes that the water problems cannot be solved by science and technology alone. What is required is community involvement, leadership, and use of local knowledge to arrive at local solutions. Tarun Bharat Sangh has prepared and supported communities to construct 11,800 water structures for storage of water. As a result of their work, more than 1,200 villages in the country are now water secure, and 12 rivers in Rajasthan, Maharashtra, and Karnataka have been revived. These works have resulted in mitigation of climate change over a 10,000 square kilometer area. For his work, Dr. Singh has received national and international accolades, including the Ramon Magsaysay Award in 2001, Jamna Lal Bajaj Award for the use of science and technology for rural development in 2005, and the Stockholm Water Award, often described as the Nobel Prize for Water, in 2015. So we'll just start the discussion now. Professor Gyani, if I begin with you. So if you could just explain to our viewers that what is the link between climate change and pandemics?
And climate change, does it increase the risk of pandemics? As far as the link between pandemic and climate change is concerned, till date, we don't have direct evidence that climate change is influencing the risk of COVID-19, but we all do know that climate change alters what we relate to other species on Earth, and that matters to our health and our risk to infections. As planet heats up, animals, whether they are small or they are big, whether they are living on the land or in the sea, are headed to poles to get out the heat. So it means that when they move towards the pole, they actually come into contact with other animals. Generally, they wouldn't. And this connection or this contact creates an opportunity for pathogens to found new hosts. So this is one thing. And another thing is that, as we all know, that there are many root causes of climate change which are actually responsible for the spread of pandemic like corona. As far as deforestation, which is a root cause of climate change and which mostly occurs due to the land use changes, mostly for agricultural purposes, and it leads to the loss of our habitat, and habitat loss forces animals to migrate and potentially come into contact with other animal and other people and share their germs. There are some studies and estimates also say that land use change, that is primary pathway of transmission of infectious disease in humans, over 60% of which are zoonotics. So therefore, we have many reasons to take climate action to protect our health and to reducing the risk of the spread of the emergence of infectious diseases, one among them. Okay. So sir, आपका इस पूरे पैंडेमिक में ना क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब लोगों में आपने कुछ अवेयरनेस या कुछ सेंसिटिविटी देखी है टुवर्ड्स nature, towards our environment, towards protecting our environment? What has your experience been through the last 1.5 years? Guys. तो जहाँ तक बात है सेंसिटिविटी की या लोगों में, तो लोग जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो दो रूप में वी कैन एनालाइज इट इन टू वेज. वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट एंड अनदर इज पॉजिटिव एस्पेक्ट. अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो it led to a dramatic loss of human lives and also presents an unprecedented threat and challenge to public health, particularly for those people who are at present working in informal sector because they don't have social security net, and also they have poor access to quality health care, we know. तो उसमें क्या होता है कि for most of people, if there is no income means no food, or at the best less food or less nutritious food. They may resort negative coping of practices like distress sale of asset, child labor, या जो है वो इस तरह की दूसरी और एक्टिविटीज या स्मगलिंग और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो दिस इज अ बैड इम्पैक्ट. एज फार एज पॉजिटिव इम्पैक्ट इज कंसर्न, लोग जो है दे आर नाउ कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम. नाउ they have started talking how our ecosystem, healthy ecosystem, is important for us. So prima facie they seems enthusiastic as far as environmental conservation is concerned. तो सर थोड़ा सा अपना अगर आप familial forestry का concept समझाएं for viewers. Familial forestry जो है that was conceived and developed by me 15 years back. Actually it starts with domestication of trees and then goes beyond. Familial forestry advocates to consider plant as a green member of family. जैसे ही हम उसको एक हरित सदस्य के रूप में कंसीडर करते हैं, it makes sense in solidification of the relationship with that plant. तो जब आपस में एक रिश्ता गहरा होता है प्लांट के बीच में और व्यक्ति के बीच में या फैमिली के बीच में, तो उससे उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, particularly in desertic regions like we are having in western Rajasthan. तो familial forestry enables family to take their green action in routine way, क्योंकि इसके लिए उन्हें एडिशनल एफर्ट नहीं करने पड़ती. और जब आप होस्ट करते हैं एक ट्री को, तो फैमिली जो होती है उसमें उसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के या उसकी लुक आफ्टर को लेकर के वो फुलफिल हो जाती है. दूसरा, बाय क्लबिंग रिचुअल्स एंड festivals with plantation, actually
it works as a pedagogy of applied education, environmental education. साथ ही साथ में हम फैमिलियल फॉरेस्ट्री में प्रमोट करते हैं इस बात को कि जो हमारी फैमिलीज है वो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स है वो लगाए, क्योंकि जब हम फ्रूट बियरिंग प्लांट्स लगाते हैं तो उसका जो एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है वो ये है कि एक तो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं फ्रूट प्लांट्स, दूसरा इससे हम कॉम्बैट कर सकते हैं मेल न्यूट्रिशन को, बिकॉज इट एड्स एडिशनल न्यूट्रिशन टू अवर फूड प्लेट। और इसका जो एक बेनिफिट है वो ये भी है कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर टू ग्रीन एक्शन, क्योंकि कोई भी फैमिली है वो फ्रूट प्लांट को इसलिए पालती है कि उसे ये उम्मीद रहती है कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो हमें इसका फल मिलेगा, तो वो फल की एक्सपेक्टेशन में उसकी लुक आफ्टर कर लेती है। तो ये एक एडिशनल इसका बेनिफिट है। दूसरा एडवांस स्टेज में फैमिलियल फॉरेस्ट्री है दैट एक्सटेंड्स प्लांटेशन फ्रॉम हाउस टू पब्लिक लैंड। इट मे बी रोड साइड प्लांटेशन और प्लांटेशन इन पब्लिक पार्क, इन स्कूल, इन एनी अदर रिलीजियस प्लेसेस, community land like Oran Gochar or on individual farmland। तो उसमें एक तरह से ये extend करती है, तो it starts from family and then goes beyond। साथ ही साथ में educational institutes है, उसमें familial forestry की importance है वो ये है कि it shapes institutional forestation by engaging students in sustainable forest management techniques। Sustainable forest management is a very evolving concept, evolving and dynamic also, and that aims to maintain and enhance the environmental, social and economic value of forest for the benefit of our present and future generation। इसके साथ साथ में जो फेमिलियल फॉरेस्ट्री है उसका एक एस्पेक्ट और है कि ये हमें जो दूसरे जो एनवायरमेंट के एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम बात करें, तो प्लांटेशन इज वन थिंग and familial forestry is not just limited to planting a sapling only। ये प्लांटेशन से आगे जाकर के इस रूप में हमें फायदा देती है कि ये एक तरह का सेंस इनकलकेट करती है पर्टिकुलरली इन अवर यंग पीपल, और उस ग्रीन सेंसिंग की वजह से ये हेल्प करती है उन्हें अंडरस्टैंड करने में और जो ग्रीन फुटप्रिंटिंग है उसको छोड़ने में। जी, तो सर जो आपका काम है और जो राजेंद्र जी का काम है, आप दोनों काम में कम्युनिटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। बोथ ऑफ यू ले स्ट्रेस ऑन कम्युनिटीज, लोकल सॉल्यूशंस। तो आपको कम्युनिटी का कितना साथ मिला, या वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस देम? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लोकल कम्युनिटीज? एक्चुअली मैडम जो फेमिलियल फॉरेस्ट्री है दैट इज टोटली अ कम्युनिटी ड्रिवन एंड कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। तो क्योंकि बेसिकली जो एनवायरमेंटल एजुकेशन की जो प्रेजेंट पेडागोजी है, इट माय व्यू दैट डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी ओनली। जब हम कम्युनिटी को एंगेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी जो है वो दैट बिकम्स अवेयर अबाउट द लोकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पहली चीज थ्रू फेमिलियल फॉरेस्ट्री वी आर मेकिंग देम अवेयर एंड वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स देयर लाइव्स। दूसरी जो चीज है इसके साथ में वो ये है कि हम इसमें ये खास ध्यान रखते हैं कि बेसिकली ये बॉटम टू अप अप्रोच है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर कहीं, जब कम्युनिटी को एंगेज करके आप काम करते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच होने की वजह से ये सक्सेसफुल ज्यादा है, क्योंकि ये कम्युनिटी की नीड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है कंजर्वेशनल एक्टिविटीज को। And of course, the entire credit of this concept, success of the credit of this concept goes to community, क्योंकि community participation से ही ये आज एक large scale के ऊपर 2.5 billion plantation in a desertic condition, it's not an easy task। Yes, बिल्कुल। Sir, I have a question here। Yes, ma'am। Can you give some examples? मतलब राजस्थान की तो टोपोग्राफी भी अलग है, सारे पौधे पेड़ पौधे वहाँ नहीं होते, तो कौन से प्लांट्स आपने चूज किए इतना ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए और क्या रिजल्ट रहा उनका? मतलब सैटेलाइट इमेजेस तो मैंने देखा है जो आपने काम शुरू किया था 10 साल पहले, और आज तो बीकानेर बहुत ग्रीन है, तो कौन सी प्लांट्स आपने चुने एंड डिड दे हैव अ न्यूट्रिशियस इफेक्ट आल्सो कि भाई एनवायरनमेंट पे तो फायदा है ही है, लोगों को भी फल वगैरह खाने को मिल रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया मैम आपने। जहाँ तक सैपलिंग सिलेक्शन की बात है तो बेसिकली जब भी हम किसी भी कंजर्वेशनल एक्टिविटी को
शुरू करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. इट्स ए प्राइमरी थिंग दैट विच आर इम्पोर्टेंट विच टू डू और विच व्हाट नॉट टू डू. तो हमने यहाँ पे बेसिकली उन्हीं जो प्लांट स्पीसीज है उनके ऊपर जोर दिया है जो लोकली यहाँ ग्रो होती रही है नेचुरल कंडीशन में. क्योंकि हम अगर कोई एक्सोटिक अगर यहाँ पे ला करके स्पीसीज डाल देंगे तो या तो वो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी का जो नेट है उसको डिस्टर्ब करेगा या वो सर्वाइव ही नहीं करेगा. तो दोनों ही रूप में अगर वो इन्वेडिंग स्पीसीज है तो भी वो नुकसानदायक है और वो अगर मर जाता है तो भी नुकसानदायक है. तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में अलग अलग सेट ऑफ एक्टिविटीज है. जैसे अगर कम्युनिटी लैंड के ऊपर प्लांटेशन करना है तो हम ये जानते हैं कि कम्युनिटी लैंड के ऊपर उतनी देखभाल नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और कम्युनिटी लैंड पे प्लांटेशन का डायरेक्ट बेनिफिट आम जो पब्लिक को या कम्युनिटी को नहीं होता, इसलिए वो उसको लेकर के उतने एंथुजियास्टिक नहीं रहते. तो हम उसके ऊपर जो यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है, जैसे हम खेजड़ी की बात करें, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, या जो सल्वाडोरा पर्सिका जाल पिल्लू बोलते हैं जिसको, या बेरी है, लसोड़ा है, जो कॉर्डिया डाइकोटोमा, इन सबको हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये हार्डी है, टर्माइट अटैक नहीं होता, फिर इनको जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है, हालांकि इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है. पर ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए सबसे बेस्ट वे है. जो लोकल स्पीसीज है उनको अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वापस उनके जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट में. जहां तक बात है कि हाउस प्लांटेशन की, तो हाउस प्लांटेशन में हम लोग फ्रूट बियरिंग जो ट्रीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. और उससे जहां तक बात है कि क्या वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि हाँ, दे आर वर्किंग. बिकॉज एक तो हमने बहुत बड़ी संख्या में जामुन लगाए हैं, शहतूत लगाया है, अनार लगाया है, लसोड़ा लगाया है जिसको गूंदा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और नींबू लगाया है, किन्नू लगाया है जो गंगानगरी हमारे इस एरिया में जो ऑरेंज की वैरायटी एक होती है. तो वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं और लोगों की फूड प्लेट में पहुंच रहे हैं. पिछले साल जब फर्स्ट वेव आई कोविड की, तो उस समय हमने एक नया काम किया और एक हमने ड्राइव शुरू किया, घर घर सहजन निरोग हरित राजस्थान. तो बेसिकली ये था ही राजस्थान को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसमें हमने 1.4 मिलियन सैपलिंग्स है वो 29 डिस्ट्रिक्ट्स में लाखों परिवारों को जोड़ते हुए लगवाई, और 3 महीने बाद ही वो उनकी फूड प्लेट में पहुंचना शुरू हो गया. अलग अलग फॉर्म में, वो सब्जी के फॉर्म में जा रहा है, उसकी जो पोड है या उसके जो फ्लावर है उनकी सब्जी बनती है, चटनी बनती है, या पराठे के रूप में, या उसका जो मोरिंगा पाउडर है आजकल जो है वो केमिस्ट की शॉप पे मिलता है. तो हमने उनको एक उसका बेस्ट और नेचुरल होममेड अल्टरनेटिव दे दिया. तो लोग उसको बहुत लार्ज नंबर में उसको यूज कर रहे हैं. इसके अलावा हमारा जो एक और जो इन सिटू बडिंग का जो एक मेथड है, जिसके द्वारा हम जो यहाँ का जो डेजर्ट जुजुब है, झाड़ बेरी मुल्सतल की, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिच वैरायटी में, हाई यील्ड वैरायटी में. तो उसके द्वारा उसका जो फ्रूट है वो कई टाइम उसका साइज बढ़ जाता है, और वो नॉर्मली क्योंकि वो अबंडेंट नंबर में है राजस्थान में, तो वो इजीली एक्सेसिबल है फॉर एवरी टाइप ऑफ पीपल एंड एवरी कैटेगरी और सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो उसको लोग इजीली जो है न केवल एक्सेस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसको रेप्लिकेट ही कर रहे हैं. ये जो फेमिलियल फॉरेस्ट्री है, इसमें जो प्लांटेशन है, इसके रेप्लिकेशन का जो रीजन है वो यही है कि ये यूजफुल हो रहा है. और जहां तक बात सर्वाइवल की है, तो हमारा जो सर्वाइवल है दैट इज ओवर 90%. और ये हालांकि अनबिलीवेबल सा लगता है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वाइवल है दैट इज बिलो 10%. तो ये सर्वाइवल इसी वजह से है कि एक एक जो पौधा है उसकी लुक आफ्टर होती है प्रॉपरली, इसी वजह से वो ग्रो कर पाता है. सर इकोसिस्टम तो सर- रेस्टोरेशन में, अच्छा हाँ, एक मिनट. तो खाली आप पेड़ पौधों पे ध्यान देते हैं या कुछ वाटर कंजर्वेशन वगैरह में भी कुछ आपको लगता है करना जरूरी है राजस्थान जैसी जगह में? बिल्कुल मैम. वेस्टर्न राजस्थान में वैसे तो अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ की रिच ट्रेडिशन रही है वाटर कंजर्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है और जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू करना सोसाइटी सीख जाती है. हालांकि इन सालों में क्या हुआ कि जब से टैप वाटर की सप्लाई शुरू हुई है गांव गांव में, उसके बाद में लोग जो है वो नेग्लिजेंट हो गए हैं पानी की बचत को लेकर के. तो हम हमारे इसके अंदर लोगों को बराबर भी ये बताते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो एथनिक विजडम है या हमारे जो एंसेस्टर थे वो किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग करते थे. प्लस साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे एक जो खराब चीज हुई है
वो ये हुई है कि जब से मनरेगा का इंट्रोडक्शन हुआ है तो जो सो कॉल्ड हमारा डेवलपमेंट है उसके नाम पे जो ओरिजिनल नेचुरल वाटर बॉडीज राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में थी, जिनको कि जोहड़ कहा जाता है, बेसिकली वो नेचुरल जो वाटर बॉडी जब वो सारी डिस्टर्ब हो गई, उसमें क्ले की पर्टिकुलर एक सॉइल, एक लेयर होती है क्ले सॉइल की, उसकी वजह से सीपेजिंग नहीं होती है वाटर की, तो वो स्ट्रक्चर तोड़ दी जाती है जब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद कंक्रीट मटेरियल और ब्रिक्स के द्वारा। तो हम वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज है उनको आप बिल्ड मत करवाइए, पक्का मत करवाइए, उसकी बजाय आप एडिशनल कोई डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो न केवल हम लोगों को अवेयर करने वरन उनको बता रहे हैं मेथड्स की किस तरीके से आप रिवाइव कर सकते हैं, कैसे जो हमारा, क्योंकि जो फॉरेस्टेशन है उसका वाटर कंजर्वेशन के साथ में जो रिश्ता है दैट इज इंडिस्पेंसिबल, क्योंकि आप बिना फॉरेस्टेशन के वाटर कंजर्वेशन कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारी जितनी भी नेचुरल वाटर बॉडीज थी उनमें पानी इसी वजह से रहता था क्योंकि उनके चारों तरफ का जो कैचमेंट एरिया था, उस कैचमेंट एरिया में इस तरह की जो यहाँ की डेजर्टिक वेजिटेशन थी कि वो वाटर को प्यूरिफाई करती थी। तो इसी कारण से, और उनके अंदर एनिमल ग्रेजिंग की, कैटल ग्रेजिंग या फिर और किसी भी तरह की ह्यूमन मूवमेंट या एक्टिविटीज है उनकी मनाही थी, और मनाही के पीछे जो रीजन था वो यही था कि वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो हम बेसिकली by planting in community land we are actually trying to restore that water bodies also. So I think Rajendra ji has joined us. No, Rashmi, he's there. Yes, I think he joined, and I think he's facing some network problem actually. Acha, okay. He had joined, and again there is a network issue at his end. Okay. I'll just can we start introducing Dr. Singh, because we have not introduced him. I did. Should we wait for him to join in? Till then, I'll just ask. I just wanted to ask. He's dropping out again and again. He's messaging that he's having a network issue. Can he join through the phone if he's not, able to join through? He's calling once. He's saying he's just joining, huh? You're on mute, I think, Urvashi. I was saying he called. He's just joining, so he said just let him in so that we'll continue the discussion then. So till then, Dr. Jani, मैं एक बात पूछना चाह रही थी आपको, जो आपने अभी ये इतना सारा प्लांटेशन किया, आपने कहा फ्रूट्स और उस पे जोर रहा है, तो उसका कोई न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट दिखा है क्या अभी? मैम इसकी अलग से कोई इंडिपेंडेंट स्टडी तो हमने करवाई नहीं है, बट ऑब्जर्वेशंस है, दे आर सेइंग दैट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग फ्रूट्स, और पर्टिकुलरली जो पिछले साल हमने जो ड्रमस्टिक का जो प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, और लोगों ने मोरिंगा पाउडर है उसको फ्रीक्वेंटली दे आर यूजिंग इट। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, पीपल शेयर पिक्चर्स विद मी आल्सो ऑफ हैविंग लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन देयर। बिकॉज़ malnutrition राजस्थान के लिए इट्स अ बिग कंसर्न, इतने सालों से राजस्थान हैज बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट, तो अगर इनका अच्छा इम्पैक्ट आता है तो देन इट विल बी a big thing, because लोग अपने आप ही घरों में लगा के और उसके थ्रू अगर उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाए, that will be a big. हम सोच रहे हैं कि पेंडेमिक की जब नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशंस, तो उसके बाद में एक जो है वो सिलेक्टेड एरिया में एक स्टडी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली हम कह सकें कि क्या इसका इम्पैक्ट आया है, कितना आया है। बिल्कुल, that will be good. जी।
पर सर आपको लग रहा है, जैसे हमने एक बार बात थी कि लास्ट ईयर हमने देखा माइग्रेशन बहुत लार्ज लेवल पे हुआ था। सो अगर हम अफॉरेस्टेशन या ग्रीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे अगर हम इनिशिएटिव्स देंगे, आपको लगता है इससे ये जो माइग्रेशन है, जो शहरों में लोग जा रहे हैं या जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है क्या? हाँ, इसके ऊपर असर पड़ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत रेस्टोरेशन। सारे जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, उनके लिए भी जो प्रेजेंट जो एग्रीकल्चरल जो मेथड्स है उसके हिसाब से उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा है एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाई दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज। तो हम अगर उनको इस बहाने अगर ट्री प्लांटेशन के जरिए अगर हम उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ अगर इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो एक एक्सटेंट तक वी कैन स्टॉप दिस माइग्रेशन। तो इसके लिए जरूरी ये है कि जैसे मैं पाकिस्तान का एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर वहां पे लार्ज स्केल के ऊपर प्लांटेशन हुआ है, और उस प्लांटेशन से वहां पे जो एपीकल्चर है, जो अपने हनी कलेक्ट करने का जो फार्मिंग होती है, एपीकल्चर बोलते हैं उसको, तो एपीकल्चर का वहां पे प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से। इस कारण वहां के जो किसान है उस एरिया के, उनमें खुशहाली आ गई है। एक एरिया है पंजाब से ऊपर एडजेसेंट ही, उसका अभी चांगू मांगू फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम भी, हमारे जो किसान हैं उनको जो अल्टरनेटिव जो एग्रीकल्चरल जो मेथड्स हैं प्लांटेशन के जरिए हम उनमें एंगेज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम जो माइग्रेशन है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरत ये है कि जो हम लोग जिस तरह का इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इनके साथ साथ में इस बात की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंटल लेवल पे इनके लिए कुछ एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो। इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो हालांकि स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की बहुत सारी, पर वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल के ऊपर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, देयर इज अ गैप बिटवीन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट नीड्स टू बी बिल्कुल, चेक। मैं वही पूछने वाली थी कि इसमें कम्युनिटीज का तो हम लोगों का तो है ही सहयोग, योगदान है, बट आपको क्या लगता है गवर्नमेंट लेवल पर किस तरह से? Dr. Singh has joined, so maybe we can start या बिल्कुल, तो introduction and continue with the questions. श्योर, Right? राजेंद्र जी नमस्कार। He's joining still, showing joining. अच्छा, Very bad network there. हाँ, वो शायद उस एरिया में थोड़ा रिमोट है ना उनका, might be a little problematic. He's there. राजेंद्र जी नमस्कार। हेलो। हाँ राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार, बात कीजिए। हेलो, बहुत बहुत स्वागत हम इस वेबिनार में। सॉरी ये इंटरनेट पे प्रॉब्लम था इसलिए फोन नहीं लग रहा था। बताइए। जी, तो सर हमने डिस्कशन तो शुरू कर दिया था और आपका इंट्रोडक्शन भी कर दिया था। वैसे भी लोग जानते हैं आपके काम के बारे में कि आपने लोकल कम्युनिटीज के साथ बहुत काम किया है वाटर रेस्टोरेशन पे। तो मैं अगर वहीं से शुरू करूं कि जैसे लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली कोविड में लोकल कम्युनिटीज का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करने में किस तरह से उनको बेनिफिशियल रहा है इस दौरान? देखिए, ये जो कोरोना का अटैक है, इस अटैक से वैसे तो सभी प्रभावित हुए हैं। जी, गांव भी, पिछले बार गांव प्रभावित नहीं थे, लेकिन इस बार गांव भी बहुत प्रभावित हुए हैं। और ये जो प्रभाव है, इससे जब लोग दुखी होते हैं तो संवेदना ज्यादा जगती है, कॉन्शियसनेस ज्यादा आती है। कॉन्शियसनेस बढ़ती जब है जब कष्ट आता है। तो इस कोविड के कष्ट ने प्रकृति के प्रति एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना जगाने का काम किया है। लोगों को अब समझ में आने लगा कि यदि हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी।
और उसी के कारण अब लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि वायु के प्रदूषण से ये जो बीमारी है कोरोना, जो निर्जीव वायरस है, हमारे शरीर में जाके सजीव होकर हमें ही मारता है, उसके बारे में अब लोग ये सोच के रास्ते निकालने लगे हैं कि हम क्या करें। पिछले साल हमने 10,000 परिवारों के साथ उनको 3-3 महीने का सूखा अनाज, दाल, तेल, सब्जी, नमक ये सब दिया, और उस टाइम में उन्होंने पहली बार लोगों ने बिना मजदूरी मांगे अपनी वेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी चारदीवारी करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मिलके लोगों ने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक नई चेतना कोविड ने पैदा की है कि लोगों को लगने लगा कि शहर जो कि इकोनॉमिकली प्रॉस्परस दिखते हैं, वो एक तरह से सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि ये कोविड का अटैक शहरों से ही शुरू हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोविड आने से समाज को एक समझ बढ़ी, समाज की एक चेतना जगी, और उस चेतना से लोगों ने अपने प्राकृतिक जीवन को दोबारा से ठीक करने का एक अच्छा प्रयास शुरू किया। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये कोरोना समाज को जगाने और समाज को प्रकृति और पर्यावरण के शोषण से जो हमारी फूड चेन है उसको ब्रोकन करने का एक समझ बढ़ी है, और अब थोड़ा लोग प्रकृति के प्रति ज्यादा संवेदना से सोचने और करने लगे हैं। तो मेरी दृष्टि से इस कोरोना का, कोविड अटैक का यही एक बड़ा फायदा हुआ है। ठीक। और सर, आपके एक्सपीरियंस में ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग उनमें चेतना जगी है, वापस भी आए हैं, माइग्रेशन हमने देखा था लास्ट ईयर हुआ है, तो आपको लगता है इन सब प्रयासों से जो माइग्रेशन है वो भी रोक सकता है क्या, ये जो शहरों में लोग भागते हैं जॉब्स के लिए? देखिए, ये जो हमारे नेताओं ने 40 साल पहले ये कहना शुरू किया कि आपको सोशल सिक्योरिटी गांव में नहीं है, आप शहरों में आ जाओ, शहरों में आपकी कोई जात नहीं पूछता, कोई पात नहीं पूछता, तो शहरों में सिक्योरिटी है। तो लोग शहरों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए, और शहरों की तरफ अट्रैक्ट होकर शहर जाने लगे बड़ी संख्या में। जिनको रोजगार नहीं था, जिनको कुछ भी नहीं था, वो भी शहर में चले गए। इस बार कोविड ने उनको ये एहसास कराया कि शहर में कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, कोई फूड सिक्योरिटी, कोई हेल्थ सिक्योरिटी, कोई एजुकेशन सिक्योरिटी, कोई वाटर सिक्योरिटी कुछ नहीं है। बस थोड़ा पैसा दिखता था, मजदूरी करते थे तो पैसा मिल जाता था, तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको लगती थी, उसके कारण वो शहर गए थे। कोविड ने उनको रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए मजबूर किया, और जैसे ही कोविड का अटैक हुआ और उनको समझ में आ गया कि शहर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, शहरों की सिक्योरिटी केवल पैसे की सिक्योरिटी है। इसमें ट्रॉली में डाले वो, हम पत्थर निकल रहे हो तो इसलिए लोग ये रियलाइजेशन करने लगे कि अपने गांव से, जहां से वो उजड़ के आए थे, वहीं हम दोबारा से कैसे जाएं और कैसे एक सिक्योर लाइफ इंश्योर कर सकें। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, शहरों से लोगों का गांव की तरफ आना, ये आगे तभी कारगर होगा जब हमारे नेताओं को और कॉरपोरेट को ये लगने लगेगा कि ये जो आत्मनिर्भरता है वो केवल कुछ चंद कॉरपोरेट का खजाना बढ़ने से नहीं, बल्कि गरीब से गरीब इंसान को अपनी जमीन पर काम मिले, अपने गांव में वो रहने लगे, अपने गांव में उसको फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर हो, तो वो एक तरह से हमारा स्वावलंबन और भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बन सकती है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस
और हमारी ब्यूरोक्रेसी की नज़रअंदाजगी है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए लोग उस ज़माने में पॉलिटिशियंस के कहने से लोग उजड़े थे, और फिर जब उनको कोविड में सहारा नहीं मिला तो फिर शहर से उजड़ के गांव आने लगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम ये जो रियलाइजेशन हुआ है और इंटरलाइज हुआ है लोगों को कि सिटी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए गांव में ही अपने को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए अपनी जमीन, अपना जंगल, अपना पानी, अपनी मिट्टी को ठीक करना होगा, अपनी हवा को ठीक करना होगा। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये है, करौली जिले में, अलवर जिले में, दौसा जिले में, सवाई माधोपुर में हमने जिन लोगों के साथ काम किया, उन्होंने इस कोविड के बाद अपनी जमीनों को दोबारा ठीक करने के लिए एक अच्छी पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है, और ये एक अच्छा रिवर्स माइग्रेशन का एक नमूना हमारे सामने है। सर, और सर हम अभी जब आपने ज्वाइन किया गवर्नमेंट का ही डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नमेंट लेवल पर आपको क्या लगता है कि, या जैसे आपने कॉर्पोरेट्स की बात करी, उनके लेवल पर किस तरह क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी तरफ से क्या योगदान होना चाहिए कि हमारा इकोसिस्टम फिर से रिवाइव हो, रिस्टोर हो कोविड के बाद? देखिए कॉर्पोरेट जो है ना, वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। कॉर्पोरेट पीपल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी के बारे में कदाचित सोचता नहीं। यदि कॉर्पोरेट इन सब बातों के लिए सोचता तो फिर ना हमारी नदी गंदे नाले बनती, और ना लोग बीमार होके मरते, और ना ये कोविड का इतना बुरा असर हम पर होता। ये जो असर है, ये जो इस वक्त प्रॉफिट का इकोनॉमिक कंपटीशन, ग्लोबल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसमें हम केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट यदि सचमुच सीरियस होता, जैसे पहले था, भारत में कॉर्पोरेट जो है, जो व्यापारी था, वो लाभ से पहले शुभ की चिंता करता था। शुभ माने सिक्योरिटी, शुभ माने कॉमन सिक्योरिटी, शुभ माने कम्युनिटी सिक्योरिटी, सबका, सबके लिए सब कुछ इंश्योर हो, उनको जीवन जीने का के लिए सब मिले। लेकिन हमारी जो कॉर्पोरेट है, उस कॉर्पोरेट का इस वक्त केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन का ही नेटवर्क हो गया है, और अब वो इस सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते। यदि वो इस सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगे तो ये जो शुभ शब्द है वो दोबारा से कारगर हो सकता है, और हम कोविड जैसे अटैक से बच सकते हैं। जी सर। और प्रोफेसर जानी? जी मैम। सर आप गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, गवर्नमेंट लेवल पर किसकी क्या चीज की जरूरत है, तो अगर आप उस पर थोड़ा एलाबोरेट करें रिगार्डिंग कि किस तरह से ये जो हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की, तो यू नो स्टेप्स दैट हैव टू बी टेकन, लोकल कम्युनिटी की तो बात हुई, कॉर्पोरेट्स की राजेंद्र जी ने बताई, तो गवर्नमेंट लेवल पर आपके विचार में क्या किया जाना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारी जो अकाउंटिंग का जो आज का जो तरीका है, कि जिस तरह से जो करंट अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स, वो क्या है कि दे आर लार्जली इग्नोर अबाउट व्हाट ecosystems and their services are contributing to our economy, our human social well-being, our jobs and our livelihoods. तो जो ये जो मेथडोलॉजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर रखी है कॉर्पोरेट्स के साथ में मिल करके, इसके कारण जो गड़बड़ हो रही है वो ये हो रही है कि वो इग्नोरेंट है इस चीज को लेकर के कि इकोसिस्टम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेचुरल कैपिटल क्या है और नेचुरल जो अकाउंटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जिस तरह से जो कॉर्पोरेट्स है वो असेस करते हैं डेप्रिसिएशन मशीनरी का या बिल्डिंग का, उस तरह के से जो ह्यूमन एक्टिविटी से जो डैमेज हो रहा है नेचर को, उसको असेस करना शुरू करें। तो इसके लिए पहली जरूरत तो ये है कि जो हमारी जो नेशनल अकाउंट्स है उसमें एक एसेट के रूप में रिपोर्ट होनी चाहिए जो हमारी नेचुरल कैपिटल है। लोगों ने इसके बारे में बात करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो हेल्दी एग्रीकल्चरल जो भी प्रैक्टिसेस हैं
जैसे हम बात करें कि टोबैको कल्टीवेशन जो है वो दैट कंट्रीब्यूट्स टू 5% लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट ईच ईयर। तो जरूरी है कि वो किसान जो टोबैको कल्टीवेशन करते हैं या दूसरी अनहेल्दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो इंट्रोड्यूस की है पिछले 60-70 साल में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में, उनको चेकआउट किया जाए और उनको रिप्लेस किया जाए। दूसरा, साथ ही साथ में गवर्नमेंट के लेवल पे ये चाहिए कि हमारी जो पर्यावरण को लेकर के और जो एक एथनिक अंडरस्टैंडिंग रही है, जैसी सिंह साहब अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, तो वो हमारी जो एक देशज समझ है, वो देशज समझ गांव के स्तर पे तो है, कम्युनिटी के स्तर पे भी है, पर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे नहीं है। क्योंकि हमारी जितनी भी जो डेवलपमेंट को लेकर के और जो स्कीम्स बनती है, वो सारी की सारी टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर है, जबकि बॉटम टू अप अप्रोच के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि लोकल लेवल पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको देखा जाए, और मनरेगा एक गांव को पैसे लौटाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है अगर इसको हम हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है उनके रिस्टोरेशन के लिए अगर इसको काम में लें। पर आज की तारीख में नरेगा इस रूप में यूजफुल हो नहीं रहा है। तो ये चाहिए कि हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे सिंह साहब और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 30 साल से मेवात रीजन में जो कुछ काम कर रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लार्ज स्केल के ऊपर रेप्लिकेट करे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इन्फेंट स्टेज की बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको टेकअप करे और उसके बाद में उनको रेप्लिकेट करे। तो ये एक बेसिक नीड है। तो एक तरह का अगर बात करें तो डिस्कंटेंट है रिक्वायरमेंट में और पॉलिसी फ्रेमिंग में, उसको चेक करने की जरूरत है। जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले 70 सालों में हमने ये देखा कि सभी पार्टी जो हमारे यहाँ मुख्य पार्टियां, सबकी गवर्नमेंट रही, हम किसी एक को पर्टिकुलर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो टेंडेंसी है वो ऐसी है कि वो अपने हिसाब से चलती है, चाहे एक्स पार्टी या वाई पार्टी रूल करे। फॉरेस्टेशन को लेकर के हमारे यहाँ इतना खराब काम हुआ है कि हमने जगह जगह जो है वो प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा और अकेशिया टोटलिस लगा दिया, जबकि हमने हमारे यहाँ के जो नेटिव पेड़ हैं, जाड़ है, खेजड़ी है, इनके ऊपर काम नहीं किया। हमारे यहाँ जो रोड साइड प्लांटेशन होता है या जो कैनाल एरियाज में या रिवर बैंक के ऊपर जो प्लांटेशन हो रहा है, उस प्लांटेशन को हमें हमारे जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं उनके जरिए किया जाना चाहिए। वो करते हैं तो हमारे पास में अपने आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि पुराने लोग थे वो इन जंगलों से बहुत कमाते थे, तो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और नया जो हम लेके आए हैं वो इस तरह का है कि उसमें सिर्फ एक टिम्बर की वैल्यू है। टिम्बर के अलावा इकोलॉजिकल वैल्यू को गवर्नमेंट समझना शुरू करे, ये जरूरी है। जैसे ही वो इकोलॉजिकल वैल्यू पानी की क्या है, पेड़ों की क्या है, नदी नालों की क्या है, उसको समझना शुरू कर देंगे, उस दिन तो हमें जरूरत है कि इकोलॉजिकल वैल्यू को फाइनेंशियल वैल्यू के रूप में हम कंसीडर करें। अगर ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे गवर्नमेंट अगर इस एक चीज को शुरू कर देती है तो मेरे ख्याल में ये एक इट्स की, और इसके बाद में बाकी चीजें जो अपने आप एड ऑन होती चली जाएगी। सर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये रूरल पे ही आ जाता है, या जहाँ पे देयर इज स्कोप फॉर प्लांटेशन एंड ऑल। अर्बन एरियाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या, जहाँ पे देयर इज मोर कॉन्क्रीटाइजेशन, रोड्स ज्यादा है, जहाँ कच्ची जगहें कम है पेड़ पौधों के लिए, तो अर्बन एरियाज के लिए भी कुछ व्हाट कैन बी डन? अर्बन एरिया के लिए हम एक मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली हमने उसको कई जगह पे रेप्लिकेट किया है, इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्टेशन का। ठीक है, हमारे यहाँ जो जितने भी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या और जितना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जितना भी हिंदुस्तान में है, सारा का सारा अर्बन स्पेस में है। तो उनमें आप देखेंगे कि उनके जो कैंपस है, उन कैंपस में आमतौर पर हमारे यहाँ जो प्लांटेशन का जो एक ट्रेडिशनल जो मेथड रहा है वो ये है कि हम अलोंग द बाउंड्री वॉल प्लांटेशन करते हैं या रोड साइड प्लांटेशन करते हैं कैंपस के अंदर। तो उसकी वो उतना यूजफुल नहीं है जितना अगर हम क्लस्टर प्लांटेशन करें और एक डेडिकेटेड स्पेस है उसको ग्रीन जोन के रूप में डेवलप करें। तो उस क्लस्टर प्लांटेशन को हमने नाम दिया इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्टेशन। तो उस इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्टेशन के जरिए हम माइक्रो इकोसिस्टम बना सकते हैं शहरों में जगह जगह, और उन माइक्रो इकोसिस्टम के जरिए हम एक तरह से नेचुरल ऑक्सीजन बैंक है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा अर्बन एरिया में एम्प्टी स्पेस है, उसको हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि
फिर वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल आ जाता है कि अर्बन एरिया में भी हमारे यहाँ जो प्लांटेशन होता है वो प्लानिंग के साथ में नहीं होता, उस पर्टिकुलर सिटी की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उनको देख करके नहीं होता। बेसिकली हम लोग जो है वो पोर्ट के अंदर एक प्लांट लगा करके गो ग्रीन होना चाहते हैं, वो वाली बात है कि फैंसी हो गए हैं हम। तो हमें प्लांटेशन में फैंसी होने की बजाय ग्राउंडेड होने की जरूरत है। तो जैसे ही हम ग्राउंडेड होंगे तो हमें पता लग जाएगा। मैंने देखा है हमारे बीकानेर में भी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ उनकी कमी को, कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे काम किया जाता है उसका अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखें, आउटपुट देखें, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस लगेगा। उसका रीजन ये है कि इस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं जो कि यहाँ के क्लाइमेट को सूट ही नहीं करते, तो इस कारण उनका सर्वाइवल नहीं आता। फिर हर साल रिपीट किया जाता है, तो लोगों का भी एक इस बात में फेथ कम होता है। वो सोचते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे पौधा पेड़ तो बनता ही नहीं है, तो क्या जरूरत है इसकी जगह इस जगह को पक्का कर दिया जाए। तो एक तो ये बड़ा जरूरी है कि हम डेडिकेटेड ग्रीन स्पेस बनाएं। दूसरा, उस ग्रीन स्पेस में हम हर चीज का ध्यान रखें। जैसे इन दिनों में पॉलिनेटर्स की संख्या बहुत कम हो रही है, तो हम इस तरह के प्लांट्स लगाएं जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें। तो उससे हम घरों के अंदर नॉर्मल जो फ्रूट प्लांट लगाते हैं या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो एक बड़ा जो उसमें चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रॉपरली पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉलिनेटर्स कम हो गए हैं। तो ये एक तरह का बायोडाइवर्सिटी का नेट है। इसको पूरे को हम अगर अंडरस्टैंड करें और जितने भी एम्प्टी एरियाज हैं अर्बन स्पेस में, उनको क्लस्टर प्लांटिंग के जरिए अगर माइक्रो फॉरेस्ट या माइक्रो इकोसिस्टम के रूप में हम अगर डेवलप कर देते हैं तो वो एक बेस्ट जरिया होगा। इस जरिए से हमने, मेरा खुद का जो कॉलेज है, हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है बीकानेर सिटी, उसमें 6 हेक्टेयर लैंड पे हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट डेवलप किया है जिसमें 100 ट्री वेराइटीज है, और उसमें हम एक नर्सरी भी चला रहे हैं। उसके अंदर बहुत तरह की दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो अपने आप नेचुरल लेवल के ऊपर शुरू हो गई है। अब हम उसको रेप्लिकेट भी कर रहे हैं। तो हमें जो करंट जो चैलेंजेस है उनके हिसाब से ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सर ठीक है। Rashmi, can we open it up for questions now if there are any? Yes. Any participants have any questions? Anyone is having any questions, they can please ask. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो सर आ रहा है कि कोरोना वायरस भी इसी वजह से मतलब फैला ना, कि हमने जंगल काट दिए हैं, एनिमल्स के साथ हमारा इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो गया है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो is it time to kind of go back to that time कि जब जंगल ज्यादा थे, हम लोग जंगलों से दूर रहते थे? क्या वही एक तरीका है इस तरह की बीमारियों को रोकने का? वरना आधी बीमारियां जो आज आती हैं वो एनिमल्स के थ्रू ही आ रही हैं। So is it time to go back in time and rewild everything? फिर से जो वाइल्ड लैंडस्केप था वो वापस लाना चाहिए और इंसानों को पीछे हटना चाहिए? देखिए, ये आपने जो सवाल किया इसका बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना मुश्किल है। वो इसलिए है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में जितनी इन्फेक्शियस डिजीज है मोर देन 60% आर जूनोटिक, और उसका रीजन है वो बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, वही आपने बताया है। बट हम सीधे बिल्कुल एकदम हम रिट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक जो इसकी एक मेथोडोलॉजी है उसको हमें इजाद करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम वापस रीशेप नहीं हो सकता वैसा का वैसा, पर अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, बात अल्टरनेट पे करने की जरूरत है। तो उस अल्टरनेट में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि लैंड डिग्रेडेशन। आज आप देखिए कि हमने अगर आइस कैपिंग को छोड़ करके बाकी जो सरफेस एरिया है हमारे अर्थ का, उसमें से जो 3/4 एरिया जो है हमारा, वो उसका लैंड यूज पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, और इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि टोटल 23% जो हमारी लैंड है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट लैंड, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन है, दैट इज ए प्रोसेस। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसकी न्यूट्रलिटी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लैंड रिस्टोरेशन इज की थिंग। अब हम कैसे लैंड रिस्टोरेशन कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो लैंड रिस्टोरेशन के लिए हमें जंगल तो उगाने हैं,
साथ ही साथ में हमें जो है हेल्दी लैंड यूज प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे हम जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ओवर क्रॉपिंग करते हैं, जो एक्सेस यूज ऑफ जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है, इनका हमें अल्टरनेट ढूंढना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमें जाना होगा। हमें स्मार्ट क्लाइमेटिक स्मार्ट एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उन पे जाना होगा। आप देखिए कि हम जैसे कॉटन ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन फाइबर, तो देयर आर सब्स्टिट्यूट्स, जैसे मेज और बैम्बू के जरिए हम जो है वो फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं, और उसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये कि वो कॉटन के मुकाबले दे रिक्वायर वेरी लेस वाटर, ग्रोइंग में भी और फाइबर को ऑब्टेन करने में भी। तो जरूरत इस बात की है कि हम जो सब्स्टिट्यूट है उस सब्स्टिट्यूट पे जाएं, नंबर एक। नंबर दो, जो सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न है। देखिए आज की तारीख में क्या हो गया है कि पीपल हु आर हैविंग स्टेटस कॉन्शियसनेस, उनके लिए क्या है कि मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पे जाना एंटीथेटिकल है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट हमें क्या सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि आपका स्टेटस है वो उसमें स्टेटस आपका अब तब होगा जब आप ओवर कंजम्पशन करेंगे। पहले क्या था कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न था दैट वाज नीड बेस्ड, आज क्या है, इट इज डिजायर बेस्ड। तो हमें जो सस्टेनेबल जो कंजम्पशन है उसके ऊपर जाना होगा। तो उसके ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, साथ ही साथ में हम जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें उन चीजों को शामिल करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्ट की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे ना मैं डॉक्टर सिंह से पूछना चाहूंगी। सर आप बताइए कि व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस शुड वी हैव यू नो टू काइंड ऑफ live a more sustainable life? Again, I think he's having some network issues. He's dropped out. He's trying to join but unable to. सर सॉरी, आप ही कंप्लीट कर लीजिए बिकॉज उनका नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। कोई इशू नहीं है मैम। तो इसमें हमें जो सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है लाइफ की, उनके ऊपर जाने के लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर फूड वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और का शेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये फैमिली के लेवल पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लेवल पे ये सेंसिटिविटी है, इसको इनकलकेट किए जाने की जरूरत है। दूसरा, साथ ही साथ में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो कितने चीजों को लेकर के और अनअवेयर हैं। 2 साल पहले 2019 का जो एनवायरमेंट डे था, उसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन। तो एक जगह मुझे इनवाइट किया गया और वहां पे डाइस के ऊपर वाटर बॉटल्स रखी हुई थी बिस्लरी की। तो मैंने जाते हुए ये कहा कि आपने आप एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो थीम है तो उस थीम की पहली लाइन को ही हमने जो है छोड़ दिया है यहाँ पे, उसके उल्टा खड़े हो गए हैं। तो किस तरीके से हम समाज को क्या मैसेज देंगे? तो उनको पता ही नहीं था कि उसका थीम क्या है, उनको छपना था, इसके लिए बस वो करना था। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारी वो बड़ी सुपरफिशियल है, तो उसमें मतलब डीप पेनिट्रेशन बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से आज आप ये देखिए कि हम लोग इतने चीजों को लेकर के और जो है वो एपेथेटिक हो गए हैं कि हम एनवायरनमेंट या कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं और पीछे फ्लेक्स बैनर यूज करते हैं, जबकि फ्लेक्स है इट्स एन हैजर्ड। तो उसको हम इस रूप में कभी कंसिडर ही नहीं करते हैं कि कितने साल लगते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी उसका है। तो बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज है। मैं अभी मेरे स्टूडेंट को समझा रहा था कि इन दिनों में अगर कहीं भी बी हाइव है लगा हुआ तो उसके नीचे पानी का आप पॉट छोड़ दो, क्योंकि अगर मधुमक्खी उड़ करके गर्मी में जाएगी तो वो मर जाएगी, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज करता है, वो उसको हीट शॉक की वजह से वो मर जाती है। तो इसके लिए उसके नीचे ही अगर हमने वाटर पॉट रख दिया है तो वो सेफ रहेगी, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंट पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये बात बड़ी छोटी है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मैं तो इकोलॉजी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो बेसिकली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी सुपरफिशियल है, और सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को कौन बढ़ा रहा है? मार्केट बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्केट ने इस तरह के हमारे सामने अल्टरनेटिव जो है ना वो खड़े कर दिए हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे एजुकेशन है वो तो एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मात्र है, हमने कभी भी इसको सिटीजनशिप मेकिंग के प्रोसेस के रूप में देखा ही नहीं है। और इसीलिए क्या है कि हमारी इस माइंडसेट का लाभ उठाते हुए आज मार्केट ने इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज और एप्स लॉन्च कर दिए कि उनके जरिए हम एक पद तो प्राप्त कर लेते हैं पर वो योग्यता हासिल नहीं करते जो उस पद के ऊपर रह करके और जस्टिस करने के लिए जरूरी होती है। तो चीजें वहां से डिटीरियोरेट होना शुरू होती है।
क्योंकि हर आदमी होता है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। तो हमें वापस गो बैक होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पुराने लोगों की तरह जूते नहीं पहने या उस तरह से जो है 5 दिन में नहाएं। जरूरत ये नहीं है। जरूरत ये है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग आज हम क्या सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट। मुझे क्या चाहिए कि मुझे मेरी जो अप्रोच है, इस अप्रोच में एम्पैथी की जरूरत है। आज मेरे पास में सिंपैथी है, मेरे पास में अपैथी है, मेरे पास में एंटीपैथी भी है, पर मेरे पास में एम्पैथी नहीं है। तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए अगर एम्पैथेटिक अप्रोच हम डेवलप कर लेते हैं, तो मेरे विचार में हम एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ पाएंगे और उस हिसाब से हम एक्ट करें और ये मान लें कि हमारी डिजायर है दैट आर अनलिमिटेड, बट आवर प्लेनेट हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देम। तो ये अगर हर वक्त हम मन में रखें तो मेरे ख्याल में हम रिस्टोर कर सकते हैं। वापस रिवर्स होना इट्स इम्पॉसिबल। Thanks, sir. So are there any questions, Rashmi, or shall I just No, we don't have any more. Okay. So I would just like to thank Professor Gyani for a very nice discussion. आपने बहुत अच्छे important points raise किए, बहुत सारे suggestions दिए, and राजेंद्र जी को भी thank you. उनका तो I think guest appearance रहा, but anyway, thank you for his. He has a very bad network. Yes, true, network issues. And I think the gist of the discussion has been that अभी भी हमारा understanding जैसे Professor Gyani ne kaha, very superficial understanding. So we need to all probably deepen our understanding more, adopt a more sustainable lifestyle, and also more sensitization on part of government and corporates towards towards the environment, towards nature, towards ecosystem restoration. So I would just like to thank both our participants, and thank you all for all of those who attended. And we'll see you in the next webinar soon, hopefully. Thank you so much. Thank you.